السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين وبك نستغيث. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. الحمدللہ، اللہ کے خاص فضل سے اور اس کے کرم سے اس پیارے اور بابرکت مہینے میں اس پاک ذات نے ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے اور اس عادت کو ہمارے ساتھ جوڑا ہے کہ ہم اس کے کلام کو کھول سکیں، اس کے آگے بیٹھ سکیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ زندگی سبھی لوگ گزارتے ہیں، کچھ اسے کامیاب کر کے گزار دیتے ہیں، کچھ ناکامی میں گزار دیتے ہیں۔ جیسے مثال دو دوستوں کی ہے کہ دونوں ہم عمر ہیں اور پہلی کلاس سے اسکول میں داخل ہو جائیں، ایک 8-10 سال پڑھ کے چھوڑ دے، ایک لگاتار پڑھتا رہے 28-30 سال پڑھ لے، تو 28-30 سال دونوں دوستوں نے زندگی میں ہی گزارے، دنیا میں ہی گزارے۔ فرق کیا آیا کہ ایک نے وہ 28-30 سال ساتھ میں پڑھائی بھی کی اور ایک نے چھوڑ دی۔ تو 28-30 سال کے بعد وہ ایک انسان کسی مقام پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تو ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بننا چاہتا تھا انجینئر بن گیا، بینک میں جانا چاہتا تھا تو بینکنگ میں چلا گیا۔ جس کی طریقے سے اختیار کرنا چاہتا تھا، جس نے پڑھائی کی وہ اس نے کر لی۔ اور یہ نہیں ہوا کہ جب وہ پڑھ رہا تھا تو اسے کھانے کو نہیں دیا جا رہا تھا، اسے پہننے کو نہیں دیا جا رہا تھا، وہ کہیں آ جا نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ سارے معاملات اپنے بالکل آرام سے انجام دیتا رہا اور ساتھ ساتھ کرتا رہا۔ تو ایک وقت آیا کہ وہ کسی مقام پر پہنچ گیا، اور دوسرے دوست نے کچھ عرصہ پڑھا پھر چھوڑ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے بھی استعمال کی، کھاتا پیتا رہا، لباس پہنتا رہا، تقریبات میں جاتا رہا، لیکن 28-30 سال کے بعد بھی اس کے ہاتھ خالی ہیں، محنت نہیں کر سکا، وہ کسی مقام پر نہیں پہنچ سکا۔ ایسے ہم سب لوگ زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کی طرف دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے نمک کو پانی میں ڈال دیں تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھلتا رہتا ہے، ختم ہوتا جاتا ہے، زندگی اس سے ختم ہوتی جاتی ہے۔ ایسے اس دنیا میں ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن کسی کی ختم ہوتے ہوتے کامیابی کے ساتھ جا رہی ہے اور کسی کی ختم ہوتے ہوتے ناکامیوں میں جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں ناکامی والی زندگی سے بچائے، اور خاص اپنے فضل اور کرم سے، کیونکہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم اللہ کو دکھا سکیں۔ اب جتنے دن سے یہ قرآن پاک کی کلاس شروع ہوئی ہے، اس میں شامل تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن روزانہ سنتے بہت کم لوگ ہیں۔ تو زندگی ان سب کی گزر رہی ہے،
ये नहीं कि जो सबक सुन रहे हैं वो खाना नहीं खाते, वो अपने बाकी काम नहीं करते, बल्कि वो बाकी काम करते हैं और अपने ये वक्त निकाल लेते हैं। उनके 24 घंटों में से ये 40-50 मिनट अल्लाह को दिखाने के लिए हैं कि अल्लाह ये 24 घंटों में 50 मिनट हम आपके सामने बैठे थे। और हर इंसान को अपनी नीयतें, अपना खुशू, अपना खुशू खुद मालूम है। हर बैठने वाले के अंदर कितना इखलास है ये हर किसी को खुद मालूम है। किसी का इखलास 100% खालिक है, किसी का 50% है, किसी का 20% है। कोई मारे बांधे बैठ गया, लेकिन बैठ तो गया। और जो लोग नहीं सुन रहे, जिंदगी उनकी भी गुजर रही है, लेकिन उनके 24 घंटों में उनको अल्लाह को दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अल्लाह ये बातें, ये चीजें हमारी समझ में उतार दे। और ईमान के साथ साथ अमल सालिहा कितनी जरूरी है ये बात अल्लाह हमें समझा दे। कुरान में जहाँ कहीं भी ईमान की बात हुई है, अमल के बगैर नहीं हुई। जहाँ ईमान की बात हुई है हमेशा अमल सालिह की बात हुई है। और हमेशा इस निस्बत को अपने ज़हन में रखें। हम इस कुरान को खोलते हैं, हमें दुनिया में किसी बड़े ओहदे वाले से मिलना हो, बड़े ओहदे वाले को छोड़कर किसी मामूली ओहदे वाले से ही क्यों मिलना हो, तो लंबे इंतजार करना पड़ते हैं। और यहाँ कभी एक चपड़ासी से बात करो, कभी दूसरे चपड़ासी से बात करो, कभी उसके सेक्रेटरी से बात करो, कभी एक से बात, कभी दूसरे से बात, फिर कहीं जाके बात होती है और अगला भी 1000 एहसान जता के बात करेगा। और ये रब है, जैसे उसका कलाम खोले वो सामने आ जाता है और वो कहता है कि तुम तवज्जो मुकम्मल रखो तो मेरी तवज्जो पूरी इधर ही है। हाँ, ध्यान भटकाओगे तो फिर मैं नहीं सुनूंगा। वो ऐसा रब नहीं है कि हम कुरान खोलेंगे, फिर किसी को वास्ते देंगे, फिर किसी फरिश्ते की सिफारिश लाएंगे तो ये आएगा नहीं। हमने कुरान खोला, हम बैठे, वो कहता था, उसने हमें दिखा दिया तो वो आ गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बातें हमारे दिलों में उतार दे। और ये 24 घंटों में 40-50 मिनट ऐसे हो जाए कि 24 घंटों में 40-50 मिनट हमारी दुनिया की जिंदगी के हैं। हम कहते हैं दुनिया और आखिरत को साथ लेके चलना चाहिए, दीन और दुनिया को साथ लेके चलना चाहिए, तो फिर हम अपनी इस बात पे अमल क्यों नहीं करते? अगर हम 4-5 घंटे दुनिया का काम करते हैं तो फिर हमें दीन को साथ लेके चलना है, तो 4-5 घंटा हमें मुसलसल से दीन का भी काम करना चाहिए। ये तो होगा ना दीन और दुनिया का साथ। अब 24 घंटे में 5 नमाजें पढ़ लेना और उन 5 नमाजों से कुल मिलाकर भी 1 घंटा नहीं लगता, तो ये कैसा दीन और दुनिया साथ चल रहा है हमारा? दीन और दुनिया तो तब साथ चले जब हम 6 घंटे दुनिया का काम करें तो 6 घंटे फिर आखिरत के लिए काम करें। ये बातें अल्लाह हमारी समझ में उतार दे। ईमान के साथ बहुत खास ताल्लुक है सूरह यासीन का। बहुत से लोगों ने नाम भेजा था कि सूरह यासीन और सूरह कहफ और सूरह मुज़म्मिल, ये 3 सूरतें बार बार कही गई। तो फिर उसमें से सूरह यासीन को इसलिए चुना क्योंकि ये रोजाना हम पढ़ते हैं। कहफ हफ्ते में 1 बार है, तो इंशाल्लाह जो रोजाना पढ़ते हैं उसके फज़ाइल ज़हन में होंगे, ज्यादा फायदा देगा। फिर इंशाल्लाह उसके बाद बशर्ते जिंदगी में मेहनत दी और अल्लाह का फज़ल और करम इसी तरह हमारे साथ रहे तो बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता करके सब सुनते जाएंगे। सूरह यासीन है कुरान पाक में बहुत फजीलत वाली, कुरान पाक का हर लफ्ज़ है, इसको अल्लाह ने कुछ इजाफी फज़ाइल दे रखे हैं। और हदीस पाक का मफ़हूम है जो बहुत मशहूर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मीठी हदीस का मफ़हूम कि यासीन कुरान पाक का दिल है। और एक हदीस के बाद अल्फाज में आता है कि जो शख्स सूरह यासीन को खालिस अल्लाह और आखिरत के लिए पढ़ता है उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, इसलिए इसको अपने मुर्दों पर पढ़ा करे। फिर इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स सूरह यासीन को अपनी किसी हाजत के लिए पढ़े तो उसकी हाजत पूरी हो जाती है। और दूसरी जगह पर फरमाते हैं यहया इब्न कसीर
کہ जो शख्स सुबह को सूरह यासीन पढ़ ले वो शाम तक खुशी से रहेगा, और अगर शाम को पढ़ ले तो सुबह तक खुशी से रहेगा। तो इसके मुताल्लिक बहुत सी ये बातें हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल इसलिए कहा गया कि इस सूरत में क़यामत और हशर और नस्र के मज़ामीन बहुत ज़्यादा तफसील के साथ आए हैं, और ईमान के अज्जा में से सबसे ज़रूरी जुज़ वो ईमान बिल आखिरह है, क़यामत पर ईमान रखना। और इसी अक़ीदे की वजह से इंसान नेक अमाल करता है और गुनाहों से दूर रहता है। तो जिस तरह इंसान के जिस्म की सेहत के लिए ज़रूरी है कि उसका दिल सही हो, इसी तरह ईमान की सेहत के लिए ज़रूरी है कि इंसान में आखिरत की फिक्र मौजूद हो। तो इस वजह से इसको कुरान पाक का दिल कहा गया है। और तौरात के अंदर सूरह यासीन को मुइम्मा कहा गया है। मुइम्मा यानी अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत की खैर और बरकतें आम करने वाली, और इसके पढ़ने वाले को तौरात में शरीफ कहा गया। और फरमाया कि क़यामत के दिन सूरह यासीन की सिफारिश कबीला रबिया के लोगों से ज़्यादा लोगों के लिए कबूल की जाएगी। और बाज़ रिवायात में सूरह यासीन का नाम मुदास्सिरा भी आया है। मुदास्सिरा दूर करने वाली, यानी अपने पढ़ने वालों से बलाओं को, वबाओं को दूर करती है। और बाज़ जगह पर इसका नाम काज़िया वो माना पूरा करना, यानी ज़रूरतों को, हाजात को पूरा करने वाली है। फिर इसके अंदर एक मसला ये है कि यासीन अगर किसी का नाम रखा जाए तो कैसा है। तो जिस तरह से ये सूरह पाक के शुरू में लिखा गया है या और सीन को मिलाकर, इस तरह से तो किसी का नाम रखना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसके सही माना मालूम नहीं हो सकता है। इसका मतलब तो ऐसा हो जो खास अल्लाह के साथ मखसूस हो, तो इंसान के लिए नाम रखना सही नहीं होगा। हाँ, अगर इस तरह से रखा जाए कि या अलिफ फिर सीन या नून, इस तरह से या सीन रखा जाए तो फिर नाम रख सकते हैं किसी इंसान का। लेकिन जैसे कुरान पाक के अंदर और हर जगह पर या और सीन सिर्फ जोड़ के लिखे गए हैं, इस तरह किसी इंसान का नाम नहीं रख सकते। सूरह मुबारक की इब्तिदा कर लेते हैं। सूरह यासीन है।